Good morning, students. Here we are on lecture, I think 6 it is, on haloalkanes and haloarenes. And in this part, we'll discuss about elimination reaction. In our lectures, we had discussed about nucleophilic substitution reaction. These are second type of reaction of haloalkanes and haloarenes. Specifically, I am talking about haloalkanes here. In SN2, SN1, that is also about haloalkane, and it is also about haloalkane. Elimination reaction. So in elimination reaction, some part of molecule removed, and on cost of sigma bond a pi bond is formed. Such reactions are known as elimination reaction. Here we are. Whenever we talking about haloalkanes, there is a type of elimination which is found is known as beta elimination. In beta elimination, a base attack on the hydrogen, you can see here, base attack on the hydrogen, remove hydrogen from here, base have lone pair of electron, it acts as Lewis base or sometimes Bronsted base also, and remove electron from here, remove hydrogen from here, and this bond it takes hydrogen as H plus because it is a base, so it acts as acid. It takes hydrogen as H plus, so this bond shift here, and then haloalkane, then that halide took electrons and removed from there also. So a pi bond formed on the cost of 2 sigma bond. The carbon from haloalkane is removed. The beta carbon of that from the beta carbon of that carbon from which haloalkane is removed, hydrogen is removed. That's why it is called beta elimination. Yeah, देखिए, this is that carbon from which halogen is removed, right? And from, if it is जहाँ से भी halogen निकल रहा है, you can consider it alpha, and उसके nearest carbon होगा, उस पर जो hydrogen होगा, so obviously that carbon would be considered as beta. So hydrogen वहाँ से remove होगा, so it will be beta. So always hydrogen removed from beta carbon, right? That's why it is called beta elimination, right? A rule is given for beta elimination. Mention here beta elimination. This is dehydrohalogenation is written. Beta elimination. So in beta elimination, you can put it here. In beta elimination reaction, the preferred product is that alkene. Agar beta elimination, listen, two important thing is there. In one case, if there is only one beta carbon, right? So there is no issue for loss of hydrogen. But if we have more than one beta hydrogen, in that case we must know from which carbon hydrogen is, from which beta carbon hydrogen is removed, right? So for describing it, Sadjev proposed a rule. According to this rule, in beta elimination reaction, the preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atoms, or simply we can say hydrogen lost by more substituted carbon atom, or carbon atom having less number of hydrogen atom.
more substituted beta carbon atom or carbon atom having less number of hydrogen atom. So if we have two beta carbon, then in that case hydrogen is removed from that beta carbon, beta carbon which has less number of hydrogen. We can say poor become poorer. इस तरीके से हम जिसके पास कम होंगे उसी से हाइड्रोजन निकालेंगे। ऑब्वियसली उसमें अगर आप इसे भी समझें तो ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो जिसमें ज़्यादा ग्रुप एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे ऑब्वियसली उस पर हाइड्रोजन कम होगा, तो हम ऐसे भी उसे कह सकते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी मच क्लियर आई थिंक। नाउ here I'm going with dehydrogenation reaction, जैसा मैंने आपसे कहा अभी जो मैं शेयर कर रहा था। In this compound you can see only one beta carbon, so no issue, hydrogen is removed from here and halogen is removed from here, right? Anti of halogen is hydrogen which is anti of halogen has been removed. ऐसा हाइड्रोजन जो हैलोजन के एंटी होता है, एंटी याद कीजिए जो हम कन्फॉर्मर्स बनाते थे ना, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, वहां पर एंटी, तो जो एंटी होता है हैलोजन का वो रिमूव्ड होता है, इसे एंटी एलिमिनेशन भी कहते हैं, एंटी वे ऑफ एलिमिनेशन। सो इन दिस केस यू कैन सी देयर इज वन अल्फा कार्बन, सो द हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम दैट अल्फा कार्बन, so no issue, there's no confusion at all. But in this case there would be two alpha hydrogen, one is this and one is this. In that case where two alpha hydrogen two beta carbon is there, in that case two product will be formed, but the major product will be according to Saint-Jef rule. कहाँ से का हाइड्रोजन निकलेगा which is more substituted or having less number of hydrogen atom. So you can see here and here is less number of hydrogen atom, here is more number of hydrogen atom, isn't it? So in that case both product will form, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आएगा जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आएगा जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, बट दिस विल बी यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा एंड दिस विल बी बेटर प्रोडक्ट और दिस विल बी हायर परसेंटेज प्रोडक्ट वी कैन से। Is it clear everyone? So this is I want to inform you, I want to represent you to you कि क्या होता है Saint-Jef rule, right? I think it is very much clear. एक और मैं एग्जाम्पल अपने तरफ से भी बता देता हूँ, okay? So you can see here in this example, you can see here, let we have CH3, CH2, CH2, CH, Cl and CH3, right? Now it acts as KOH alcoholic. KOH alcoholic is better or more stronger base than alcoholic, more stronger base than that KOH aqueous, because main composition of KOH alcoholic is C2H5O minus. तो C2H5O minus जब C2H5OH के साथ KOH रिएक्शन करता है तो ये बना देता है, तो इसलिए it would be better, right? So in that case what would happen कि हाइड्रोजन या तो यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा। If hydrogen is removed from here, the bond will be pi bond form here, and if hydrogen is removed from here, pi bond will be formed here, right? So two product will be formed, CH3, CH2, CH double bond CH and CH3, and the other product will be CH3, CH2, right? It is 2, CH2, CH double bond CH2. So in both the cases what will happen, which is more, it is major product, है ना? ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट होगा और ये प्रोडक्ट जो होगा माइनर प्रोडक्ट होगा। कई रीज़न हो सकते हैं, एक तो Saint-Jef रूल है, लेकिन Saint-Jef रूल इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यू कैन सी दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। देखिए आप 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन किया तो देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। इन दिस केस ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। सो एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में हम पहले भी लास्ट ईयर बात कर चुके हैं कि कहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे और कहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे, ये हम बड़े आसानी से बता सकते हैं। So 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है और 5 अल्फा हाइड्रोजन, दिस प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई Saint-Jef has suggested this.
मार्कोवनिकॉफ में भी मैकेनिज्म में अपन ने यही देखा था कि क्यों वो ऐसा सजेस्ट कर दें, क्योंकि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पर ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट की बात होती है और उसी के बेस पर ये डिसाइड किया जाता है, राइट। सो रिमेंबर इट, इन दिस केस ऑलमोस्ट 81% प्रोडक्ट इज दिस प्रोडक्ट ओनली, 81% इट इज, एंड इट इज ओनली 19%, राइट। आउट ऑफ द वे मैं आपको इस सिलेबस के अलावा मैं थोड़ी सी चीज बता देता हूँ। जनरली व्हाट विल हैपन, समटाइम्स जब हैवी बल्की बेस होते हैं लाइक CH3, CH3, CH3O-, ऐसा बेस लिया जाता है इन दी सॉल्वेंट CH3, CH3, CH3 और COH। इन दिस केस एक रूल लगता है हॉफमैन रूल। ये जो पहला प्रोडक्ट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेट-जेफ प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज नोन एज हॉफमैन प्रोडक्ट। तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, बल्कीनेस होने के कारण से ये बेस जो है यहाँ अटैक नहीं कर पाता, तो यहीं से हाइड्रोजन निकाल देता है। और इन दैट केस अगर इसी रिएक्शन में ये बेस लिया जाए तो दिस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट विल बी माइनर प्रोडक्ट। जब बल्की बेस होता है तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, और जब नॉर्मली जो हम बात करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर आपको गिवन नहीं है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है जब बल्की बेस होता है, अदरवाइज सेट-जेफ प्रोडक्ट विल बी योर। इसमें देखिए ये प्रोडक्ट जो है आपका सेट-जेफ प्रोडक्ट है, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, राइट। सो रिमेंबर इट, आउट ऑफ द वे आपको बता रहा हूँ, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर क्लास 12 सिलेबस, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस, right? Okay, now so this is I want to show you what is elimination reaction, what is beta elimination, and what is Saint-Jeff rule. Here I'm also discussing with you that type of beta elimination reaction. Beta elimination reaction generally दो तरीके के होते हैं, एक कहलाते हैं E2 यानी एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जैसे SN2 होते हैं वैसे ही E2 होते हैं, ठीक है, लेकिन पूरी तरह सिमिलर नहीं। मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं और कुछ चीजों की, जैसे लाइक SN2 और E2 में क्या सिमिलर है, बोथ आर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, राइट। बोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर बोथ इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए 2 होता है, इसीलिए बायोमॉलिक्यूलर कहते हैं, राइट, ठीक है। और बाकी हम क्या कह सकते हैं, तो ये दोनों खास चीजें होती हैं, E2 और SN2 में सेम होती हैं। अदरवाइज एलिमिनेशन हमेशा टर्सरी पे ज्यादा अच्छा होता है, चाहे वो E1 हो चाहे वो E2 हो, टर्सरी पे ज्यादा अच्छा होता है, फिर सेकेंडरी पे, फिर प्राइमरी पे। एलिमिनेशन में ये बात श्योर, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन टर्सरी में ज्यादा होगा, चाहे वो E1 हो या E2, राइट। E2 और E1 में सबसे एक और खास बात जो है मैं अगले स्लाइड में उससे शेयर करूंगा, यहीं मैं थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेता हूं पहले। E2 और E1 में बेसिकली डिफरेंस, E1 और SN1 में सिमिलरिटी होती है, जैसे SN1 में कार्बोकैटायन बनता है तो E1 में भी कार्बोकैटायन बनता है। SN1 भी मिनिमम 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, E1 भी मिनिमम 2 स्टेप मैकेनिज्म भी होती है, राइट। SN1 का भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है, E1 का भी ऑर्डर ऑफ SN1 का भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, तो E1 का भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, ठीक है ना। इस मायने मीनिंग में सेम होते हैं, ठीक है। और टर्सरी में ही होता है। अब पॉइंट ये आता है कि E2 कब होगा और E1 कब होगा, ये एक बहुत ही शार्प लाइन है, मैंने एग्जाम्पल से ही आपको बता दिया है, उससे आप ज़्यादा अच्छा याद रख सकते हैं। वैसे जनरली जब स्ट्रॉन्गर बेस होता है तो E2 ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है, और हीटिंग अगर आप कर देते हैं तो भी आपको E2 ज़्यादातर देखने को मिलता है। E1 कम ही केसेस में हमें देखने को मिलता है, राइट। बेसिकली एसिडिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन में E2 ही देखने को मिलता है, एसिडिक कंडीशंस में E1 देखने को मिलता है, ओके। जैसे मैंने कहा दो तरीके के रिएक्शंस की बात की थी, मैं दो तरीके के रिएक्शंस मुझे बताने हैं। एक तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन मैंने बता दिया है, एक रिएक्शन और मैं यहाँ पर स्लाइड में मेंशन नहीं कर पाया हूँ, सो लेट मी मेंशन दिस आल्सो। दोज रिएक्शन आर नोन एज डिहैलोजनेशन रिएक्शन। Dehalogenation reaction also considered as E2 reaction. And what happened in dehalogenation reaction, that in case of dehalogenation reaction you can see
in dehalogenation reaction, remember, it is not, I think, given in your book. I think that's why I missed it. Okay, so what will happen in dehalogenation reaction? CH3, like we have dihalo compound, right? CH2 and here is Cl, and CH2 and here is Cl. So when this compound react in presence of zinc or सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन, जो फिंकलस्टीन रिएक्शन का रिएजेंट होता है वही वाला, इन दोनों की प्रेजेंस में व्हाट विल हैपन, दोनों Cl निकल जाएंगे और यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड ZnCl2. So these are dehalogenation reaction. Again I'm simply represented it. Otherwise what will happen, I'm also representing the mechanism of it, CH2 and Cl. So what will happen, zinc initially convert into Zn, zinc initially convert into Zn2 plus and give 2 electron. This chlorine took that electron and gives removed as Cl minus. Obviously carbon lost his its one valency. So what will happen, this bond it attract toward, and this chlorine removed as Cl plus. Cl plus chlorine will take 2 electron and convert into Cl minus. So this whole part will convert into ZnCl2 and the product will be formed in CH2 double bond CH2. Again it is anti-elimination. ये भी जैसे मैंने आपको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में बताया था, ये भी एंटी एलिमिनेशन का तरीका है, यानी दोनों Cl तभी बाहर निकलेंगे जब वो एक दूसरे के एंटी होंगे. सो ये भी एंटी एलिमिनेशन का तरीका होता है, राइट. सो रिमेंबर इट. NaI और एसीटोन में फिंकलस्टीन रिएक्शन ही होता है और दोनों Cl हटकर उस पर I जुड़ जाता है बाय SN2 रिएक्शन, लेकिन दो नियरेस्ट कार्बन पर यानी नेबरिंग कार्बन पर कभी भी आयोडीन स्टेबलाइज नहीं हो सकते और इसलिए I2 बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल इसी केस में अगर हम देखें, इन केस ऑफ NaI प्लस एसीटोन की बात करें तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, CH2I एंड CH2I. तो I खुद से ही बाहर हो जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, बिकॉज आयोडीन उतना स्टेबल नहीं होता है कार्बन के ऊपर और अच्छा लीविंग ग्रुप भी होता है, राइट. सो ये दिस रिएक्शन ऑल्सो अ पार्ट ऑफ E2 एलिमिनेशन रिएक्शन. This reaction also a part of E2 elimination reaction, dehalogenation reaction we termed these reaction, right. So dehalogenation reaction. Here I'm again on some important instruction which is not given in your book but I need to share with you, right. So the one is substitution reaction. So substitution reaction, we know what happen in substitution reaction. One sigma bond break and another sigma bond come. In elimination reaction, we know on the cost of sigma bond pi bond form. 2 sigma bond break and pi bond form, right? तो elimination और substitution clear होना चाहिए. The second one is whatever elimination or in case of substitution reaction. जनरली अगर हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन पे, तो सब्स्टिट्यूशन जनरली मॉडरेट बेस की प्रेजेंस में होता है, लाइक KOH एल्कोहलिक, KOH एक्वस, ठीक है ना. वी कैन से कि सब्स्टिट्यूशन किस केस में होता है, सब्स्टिट्यूशन जनरली इन प्रेजेंस ऑफ मॉडरेट बेस. किस कंडीशन में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ मॉडरेट बेस लाइक KOH एक्वस, राइट. लेकिन जब हम एलिमिनेशन की बात करते हैं तो ये जनरली टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट. इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हमें ये देखने को मिलता है. ये मॉडरेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस. मॉडरेट बेस में अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं लाइक KOH एक्वस, KOH, or in bracket we can put aqueous, it means solution, water में solution होगा इसका.
KOH aqueous. But in this case there are many bases like KOH alcoholic, KOH alcoholic. Most of the time in good books it is written as C2H5O एंड सुपरस्क्रिप्ट्स में इसमें माइनस होगा, ठीक है। और सॉल्यूशन इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, C2H5OH, C2H5OH, राइट। और कुछ बल्कि बेस भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं NaNH2, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं NH2 माइनस, C2H5O माइनस, इनके केसेस में हमेशा एलिमिनेशन देखने को मिलता है। रिमेंबर नाउ द सेकेंड इज relatively low temperature, या सिंपली वी कैन से लो टेम्परेचर। सब्स्टिट्यूशन के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए होता है, ठीक है, जबकि एलिमिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। एलिमिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, राइट। तो ये हमें खास कर ध्यान रखना होता है जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं। देयर आर मैनी मोर स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, बट अगर हम इस चीज़ को खास कर ध्यान रखें तो हमारे लिए ये चीज़ रिलेटिवली आसान हो जाएगी। बाकी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा आपको दी नहीं है, बट डेफिनेटली जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पर बात करेंगे तो वहाँ मैं मैकेनिज्म बताऊँगा। डीहैलोजिनेशन की रिएक्शंस लेट वी सी, एंटी एलिमिनेशन होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल शेयर रिलेटेड दैट एंटी एलिमिनेशन की थोड़ी सी मैकेनिज्म और होती है, वो भी हम शेयर करेंगे, बट इट इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, सो आई एम स्टिक टू योर बुक स्पेसिफिकली। थोड़ा बहुत अगर कुछ ऐड होता है तो बता देता हूँ, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल इसी पोर्शन को देखना चाहते हैं। ओके, नाउ द थर्ड इज, so this is all about elimination reaction, dehydrohalogenation reaction and dehalogenation reaction. These are elimination reaction in haloalkane, right? Here the reaction with metals, बहुत सारे क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स होते हैं और मेटल से रिएक्शन करके कार्बन मेटल बॉन्ड्स बना लेते हैं। इन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनमें से एक एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यू कैन सी इन दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई थिंक अगर आपको दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। आई थिंक अगर आपको दिख रहा हो तो इन दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एथाइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम will give 2 electrons in this case, 1 electron to this carbon and 1 electron to halogen, and form this compound CH3CH2MgX. In this compound the carbon magnesium bond is slightly covalent in nature, right? लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मैग्नीशियम पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है और कार्बन पर नेगेटिव माइनस नेचर होता है। यानी CH3CH2 will act as a nucleophile in various reaction. CH3CH2 न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है बहुत सारे रिएक्शंस में। और MgX जो बॉन्ड होता है ये प्योरली आयनिक होता है और ये बॉन्ड जो है थोड़ा सा कोवेलेंट होता है, लेकिन उसके बाद भी न्यूक्लियोफाइल की तरह CH3CH2 will attack in many reaction. And also CH3CH2 मैं इसके कुछ एक दो रिएक्शन आपसे शेयर जरूर करना चाहता हूँ। सो लेट बी सी ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो रिएक्शंस हैं, एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक रिएक्शन तो ये है कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं, whenever we talking about ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, in that case ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो तरीके से या आई कैन से एक से ज़्यादा तरीके से रिएक्शन करता है। एक जो उसका तरीका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जो यहाँ जरूरी है मैं यहाँ बताऊँगा, बाकी जब आएगा तो मैं आप उसको वहाँ बताऊँगा। तो एक जो तरीका है एक्ट एज अ बेस,
एक्ट एज अ बेस, और इस रिएक्शन का रेट सबसे ज़्यादा होता है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैज टू ऑप्शन, one to act as a base and one to act as a nucleophile, so act as a base, right? So act as a base, it means act as a CH3CH2 minus, और किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन, जहां पर भी पोलर हाइड्रोजन होगा वहां से हाइड्रोजन को निकाल कर और अलग ले जाएगा, यानी CH3CH2 माइनस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने H2O लिया, पोलर हाइड्रोजन का मतलब है जिस कंपाउंड में आप H प्लस लिख सकते हैं, तो आपको पता है कि H2O में हम H प्लस और OH माइनस लिखते हैं। सो इट इज अगेन पोलर, एसिडिक नहीं है ओके, बट इट इज पोलर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, और आई कैन से जब CH3CH2 माइनस अटैक कर रहा हो तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी ये एसिड है, तो ये H प्लस दे देगा और इससे कंबाइन हो जाएगा और ये CH3 बन जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो एज इट इज रह जाएगा, लाइक MgBrOH। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन ये दे सकता है। NH3 के साथ अगर ये रिएक्शन देगा तो NH3 में भी यही कंडीशन होती है, H प्लस और NH2 माइनस, यानी N पर माइनस होता है। तो अगर NH3 के साथ ये रिएक्शन देगा तो अगेन द सेम रिएक्शन वुड हैपन, सेम रिएक्शन विल अकर, MgBr एंड OH। एक जो चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन में जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमेशा ध्यान दीजिएगा जो हेलो एल्केन है इस रिएक्शंस के लिए हेलो एल्केन प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे खास बात है कि कौन सा होगा, आयोडो, यानी RI की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अगर मैं एक्टिविटी का क्राइटेरिया यहाँ सेट करना चाहूँ तो RI की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करना चाह रहा हूँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूँ तो RI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद RBr, यानी इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए, राइट, इस चीज को ध्यान रखिएगा, उसके बाद RCl और RF ऑलमोस्ट नहीं होता है, RF ऑलमोस्ट नहीं होता है। लेट वी कम टू आवर पॉइंट। सो इस तरीके से कोई भी रिएक्शन, जैसे एसिड एल्कोहल ले लें, अगर हम एल्कोहल ले लें क्या हो जाएगा, C2H5OH, तो C2H5OH में हम जानते हैं H प्लस हो सकता है और O माइनस, यानी C2H5O माइनस हो सकता है और H प्लस, तो अगेन इट विल रिएक्ट एंड व्हाट विल हैपन, ये H लेके निकल जाएगा और ये बना लेगा CH3 एंड द अदर प्रोडक्ट इज MgBrOC2H5। सो एनीवेयर वेयरएवर वी कैन फाइंड एंड CH3COOH, वहां पर भी एक हाइड्रोजन होता है, तो जहां पर भी हाइड्रोजन है सबसे पहले उस हाइड्रोजन को निकाल कर, हाइड्रोजन होता है मतलब पोलर हाइड्रोजन होता है, राइट, सो उस हाइड्रोजन को लेकर एल्केन बना लेता है। तो दिस इज रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज अ बेस। Right, the second reaction of Grignard reagent is act as a न्यूक्लियोफाइल। बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, जैसे जैसे वो आते जाएंगे आई विल टेल यू अबाउट दोज रिएक्शन। यहाँ पर जो है मैं केवल उनके बारे में बता रहा हूँ। तो इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और कैसे, चलिए, तो यहाँ पर हेलो एल्केन हमने देखा है ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बार बना लिया आपने। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आप किसी भी हेलो एल्केन पर करा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने रिएक्शन कराया CH3MgBr, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो SN2 और SN1 रिएक्शन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, Cl को बाहर निकल जाएगा और CH3 CH2 CH3 बन जाएगा एंड द प्रोडक्ट विथ बी MgBrCl। CH3 CH2 CH2Cl, and when it react with CH3 CH2Br MgBr, Grignard reagent, what will happen in this reaction? CH3 CH2 CH2 and CH2CH3 ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, अटैक ऑन दिस कार्बन एंड CH2CH3 बन जाएगा एंड द रिमेनिंग इज MgBrCl। एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे हो सकते हैं
वैसे ही होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, हैलोजन को बाहर निकाल देगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह ये जो इसके पहले रिएक्शन है, वैसे अलग अलग तरीके के रिएक्शन है, इन रिएक्शन को कहते हैं क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So it acts as a nucleophile, act as a base, act as a nucleophile with haloalkanes, it gives alkane. Remember it. Okay. Now आगे अगर हम बात करते हैं, सो अदर रिएक्शन बहुत सारे अलग हो सकते हैं, बट मेन हम रिएक्शंस की बात करें। नेक्स्ट रिएक्शंस आर वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शंस आर वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हमने क्लास 11th में डिस्कस किए थे। बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में हमने बात की थी वुड्स रिएक्शन की। व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ इन वुड्स रिएक्शन? इट एक्ट जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ दोनों R एंड R' मस्ट बी सेम, तो यील्ड अच्छी होगी R और R'। अगर यहाँ देखिए R और R' बताया गया है, ये होना नहीं चाहिए, बट मैंने लिख दिया, इट इज़ ओके, बट R एंड R' जो है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर अलग अलग होंगे तो यील्ड अच्छा नहीं होगा। एंड मैनी मिस्टेक्स आर देयर, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सो R और R' जो है वो सेम होने चाहिए, अगर अलग अलग होंगे तो यील्ड अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं तो CH3 CH2 Cl is there and Na is there and Cl CH2 CH3 and here with them ईथर सॉल्वेंट जो है वो ईथर होना चाहिए। वाटर अगर होगा तो वाटर के साथ सोडियम डायरेक्टली पहले ही रिएक्शन कर लेगा। एसिड बेस रिएक्शन का रेट सबसे ज़्यादा होता है। सो इन दैट केस 2 सोडियम विल रिएक्ट और 2 NaCl बाहर निकल जाएगा और दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। इजंट इट राइट? सो रिमेंबर राइट। तो कोई भी आप दो एल्काइल ग्रुप ले लीजिए, CH3 CH CH3 and the Cl, and when it react with sodium, so those 2 molecules of it will count it will count, and in presence of ether it will give CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, 2 मॉलिक्यूल इसके जुड़ गए आपस में। एक्चुअली इन दिस रिएक्शन फ्री रेडिकल, अगर इंटरमीडिएट, थोड़ा सा इंटरमीडिएट हमेशा समझ लेना चाहिए, इंटरमीडिएट ये बनता है और 2 इंटरमीडिएट आपस में जुड़ जाते हैं। Cl जब बाहर निकलता है तो एज अ Cl माइनस बाहर निकलता है, मैंने ये मैकेनिज्म आपसे पहले भी शेयर किए, और यहाँ पर CH प्लस हो जाता है। इन दैट केस सोडियम विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन सोडियम विल कैच, दिस इलेक्ट्रॉन सोडियम विल गिव एंड दिस कार्बन विल कैच। तो कार्बोकैटायन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या बन गया? फ्री रेडिकल, और ऐसे 2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएंगे। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन दैट आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, बट अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर भी आप इसे ध्यान दे सकते हैं। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू राइट। सो वुड्स रिएक्शन में सेम हेलो एल्केन होने चाहिए। अगर अलग अलग वुड्स रिएक्शन, दैट्स वाई स्पेसिफिक और जनरली वुड्स रिएक्शन इज used for preparation of hydrocarbon, but for symmetric hydrocarbon having even number of carbon atoms. Because अगर हम 2 different molecule लेते हैं, like अगर हम एक example ले लेते हैं CH3 CH2 and Cl plus CH3 Cl in with sodium and ether, सोडियम और ईथर के साथ, तो पूरे रिएक्शन में क्या होगा? एक बार ये प्रोडक्ट इसके खुद के रेडिकल बनाएगा और आपस में जुड़ जाएगा, यानी एक प्रोडक्ट आपको ये मिल सकता है CH3 CH2 CH2 CH3, दूसरा ये भी आपस में जुड़ सकता है, तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी है CH3 CH3, एंड एक प्रोबेबिलिटी होगी कि इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल आपस में जुड़े। सो 3 प्रोडक्ट वुड फॉर्म। ऑब्वियसली इस केस में देखिए 100% यही प्रोडक्ट मिलेगा, इस केस में 100% यही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर हम जनरल अपनी नॉलेज का यूज़ करें तो 33% प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब बाकी सारे प्रोडक्ट हमारे उतने यूज़ के नहीं होंगे। इसीलिए वुड्स रिएक्शन का यूज़
इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक एल्केन, सिमेट्रिक जिन्हें इक्वल हाफ में कट किया जा सके। एसिमेट्रिक एल्केन आप देख सकते हैं, दिस इज एसिमेट्रिक एल्केन, और इसके प्रिपरेशन के सोचकर ही हम अलग अलग ले रहे थे, लेकिन उसमें 33% ही काउंट हमें देखने को मिलता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिमेंबर इट, राइट। So this is all about from my side for today. We'll discuss other part in next class. In other part we'll discuss about reaction of haloarenes. Thank you for today.